کمیونٹی کو جو ہے وہ مسائل میں ڈال رہا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو یہ ایک بات تو طے ہے، یہ لوگ گستاخی تو کرتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کو بھی ایسا نہیں چاہیے کہ یہ ایسے کام کریں کہ ایک وہ کسی کے دماغ میں غلاظت ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایسا فیل کرتا ہے، ایسا فیل کرنے کے بعد وہ پوری اپنی کمیونٹی کو اپنے مسائل میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہوتا ہے وہ اس کو پک کرتا ہے. یا تو یہ ڈیلیبریٹلی کروایا گیا ہے یا کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے راز ضرور ہے. صحیح ہے. یہ تو آگے آنے والے دنوں میں جو ہے نا یہ پتا چلے گا. یہ بعض لوگ یہ ایسا کام اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اریسٹ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آ جائیں گی، این جی اوز آ جائیں گی، اس کے بعد ہماری سنوائی جو ہے وہ یورپین یونین تک چلی جائے گی، تو اس وجہ سے ہم ملک سے بآسانی جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے. بالکل بالکل. پریشر ڈل کیونکہ عمران خان نے وہ سب ملعونہ کو چھوڑ کر نا ایک مثال قائم کر دی ان لوگوں کے لیے کہ بھائی تھوڑی سی مصیبتیں ہوں گی، جیل میں تھوڑے عرصے رہنا پڑے گا، اس کے بعد جو فورن فنڈڈ این جی اوز ہیں وہ آ جائیں گی اور وہ آ کے آپ کو بچا لیں گی. اس کے بعد آپ کو جو ہے کسی نہ کسی ملک میں یورپ کے یا آپ کو پناہ مل جائے گی. تو لوگ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اچھا، اس میں خالی ایک جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ بغیرت نام نہاد مسلمان بھی شامل ہو گئے ایسے کاموں میں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر قادیانیوں کا بھی گاڑ تھا نا یہاں پر، یہ جو واقعہ ہوا ہے تو ہاں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. بات یہ آپ نے وہ یاد ہوگا وہ کچھ عرصے پہلے وہ ایک فیصل کے پروگرام میں کچھ ایک معاملات ہوئے تھے لائیو پروگرام میں، یاد ہے؟ جی جی. رمضانوں میں یہ واقعہ ہوا تھا. کچھ جو دو آواز کی دوبارہ آواز گم ہو گئی ہے یار. آواز ہے. اب آ رہی ہے، کچھ بولیں. اچھا، تو میں یہ کہاں بولو، آپ کچھ پوچھو، بولو اب. یہی صورتحال تھی جو میں آپ سے لینا چاہتا، کیونکہ یہ ٹائملی آپ دیکھیں نا، یہ ٹائمنگ بھی دیکھیں نا جو اس وقت انہوں نے بنائی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان پر ایک بہت بڑا یہ اس کیا اگر ایک کھڑا ہو کہ ایک مسیحی یا جو بھی ہے، جو بھی فتنہ کی وہ تو کر کے یا تو وہ سلپ ہو گیا، نکل گیا وہاں سے. بالکل. یا اگر وہ ان کے پولیس کے ہاتھ میں ہے بھی صحیح، تو انہوں نے اس کو ابھی چھپائے ہوا ہے کہ حالات گرم ہیں، کہیں اس کو پھر لوگ مار نہ دیں. ابھی ہمیں کوئی ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ پکڑا گیا ہے یا وہ پولیس وہ مفرور ہے. ابھی تک جو پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ گرفتار نہیں ہوا، یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی وہ نہیں ہوا یا ایسے ہی ہے. جو کرتے ہیں کہ گستاخی کرنے کے بعد جو ہے نا ہمیں اس ملک سے باہر جانے کا رستہ ایزی مل جائے گا. بالکل بالکل. وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے نام پر. تو بالکل کچھ لوگ یہ کام ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. صحیح ہے. اور پھر وہ لازمی بات ہے، لوگوں کو انتشار آتا ہے، لوگ انتشار میں آتے ہیں، وہ پھر سب کو ساتھ برا کر ڈالتے ہیں. وہ جو بیچارے بیچ میں ہوتے بھی نہیں شامل ان کاموں میں،
वो भी रगड़े जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो फिर यहाँ पर जितने भी लिबरल है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हाँ, के लबैक पाकिस्तान ने किया है। वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि जो वो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं या फॉरेन फंडेड ह्यूमन राइट्स के जो सो कॉल्ड इदारे मौजूद हैं वो आ जाएंगे हैं। अब इसमें किसी एक ग्रुप को तो आप कह नहीं सकते, ये तो पब्लिक मैटर है, ये तो कम्युनिटी के बीच में हुआ ये मामला। तो आप किसी एक ग्रुप को इसमें तो वो नहीं पॉइंट आउट कर सकते ना कि भाई इस ग्रुप ने खड़े होके ये वायलेंस की है। बिल्कुल। ये तो एक जनरल पब्लिक है, वो लोगों ने वो देखा है कि उनके दीन के साथ बेहुरमती की गई है, तो वो शुरू हो गए इस मामलात में। ऐसे यार ऐसे मामलात होने नहीं चाहिए, क्योंकि कानून की कमजोरी, कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर कानून की होती तो ये वाक़या यार होता। आप देखेंगे अब रात के तकरीबन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे भी जड़ावाला के गलियों में शेलिंग हो रही है कि लोग बाहर ना निकलें, घरों में ही घुस जाए, बैठे रहें। आपको ये फुटेज रिसीव हो रही है आपको उस पर? हाँ, अभी ये फुटेज सामने आई हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कल्परिट है जो पीछे निकलता है, ठीक है ना। उसने जिसने भी किया है ना, उसने जुल्म किया है, उन लोगों के साथ जुल्म किया है जो पुरअमन रह रहे थे। बेशक वो गैर मुस्लिम थे लेकिन वो पुरअमन रह रहे थे। लेकिन उसने ये जुल्म करके उसने ना सिर्फ मुसीबत अपने लिए खड़ी की है बल्कि उन लोगों के लिए भी खड़ी कर दी है जो पुरअमन रह रहे थे, जो इंतशार नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह पता चलेगा। इस तरह का मेरी बात हुई थी उधर जड़ावाला के जो अमीर थे, उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया, तो शायद उस वक्त भी यही सिग्नल का उधर मसला था, कभी आवाज़ कटिंग हो जाती थी तो कभी सही हो जाती थी। आसिफ शाह साहब का जो जड़ावाला के अमीर हैं, बजाते खुद मेरी डायरेक्टली उनसे बात, उन्होंने भी यही बात मुझे की थी। उन्होंने कहा कि मालूमात आपको दी है? उन्होंने मुझे यही मालूमात दी कि वकास भाई उधर ये सुबह के टाइम जो वाक़या रुनवा, इसके बाद आवाम सड़कों पे आई, लेकिन उससे पहले 2 घंटे पुलिस ASI जो था उसने बात नहीं सुनी। जब आवाम सड़कों पर आई, आवाम ने शदीद एहतजाज किया, उसके बाद वो हरकत में आया, लेकिन उसके बाद वो देर हो चुकी थी और अभी तक वो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि उधर ये बात कंफर्म है कि उसने बेहुरमती की है। हाँ, जो भी शख्स था, ये बात कंफर्म है। कुरान पाक को जलाया गया, कुरान पाक के जलाने के बाद ये सब वाक़या रूनमा हुआ है कि ये पब्लिकली किया गया है। साफ ज़ाहिर है आखिर किसी ने उसको देखा है ना। भाई लाजमी बात है ना कि भाई उसने गली में खड़े होकर या बाजार में चौक में खड़े होके ऐसा काम किया होगा, तभी तो लोगों को लोग इंतशार में आए, बिल्कुल गुस्से में आए। फिर लोगों ने जाके सबसे पहले जो है वो कानून का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। तो जब लाजमी बात है कानून अंधा गूंगा बहरा जब सोया पड़ा रहेगा तो फिर ऐसे कम्युनल वायलेंस तो होंगे। तो इसमें तो आप किसी को सही है। कसूरवार तो वो है जिसने ऐसी बेहुरमती की, और कसूरवार वो इदारे हैं जिन्होंने कानून नाफिज करना। वो जाके अगर फिल फॉर उस शख्स को पकड़ लेते जिसने ये बेहुरमती करी है, तो ऐसे मामलात नहीं होते ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये सेटअप भी हो सकता है। अब ये दबाव आ रहा है ना कि तहरीक के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाए, इन्हीं के लोग थे। उन्होंने तो सुन तो लो ना मेरी बात। जी जी, वो हो सकता है, अगर ये सेटअप भी हो सकता है कि इस तरह सेटअप करके एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो उसका वायलेंस का वो पॉइंट आउट किया जाए कि भाई इन्होंने वायलेंस की है। सही है। अब वहाँ पर 7 दिन के लिए वो भी लगा दिया गया, दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है। अच्छा, दफा 144 नाफिज कर दी। अब क्या फायदा? रेंजर को भी बुलाया गया है।
जब इतना कुछ हो गया अब क्या फायदा भाई, सीधा जाके उस शख्स को पकड़ते जिसने ये बेहुरमती की। अब ये उसी वक्त सब फिल बोल फौर रहे हैं मीडिया पर इधर उधर के ये वो तहरीक वाले थे, इनके खिलाफ एक्शन हो और ऐसा एक्शन लिया जाए कि आइंदा इनकी जुर्रत ना हो, इनकी नस्लें याद रखें, यानी मज़ीद इश्तियाल दिलाने की हरकत की जा रही हैं। फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। उनको वो नहीं नजर आ रहा, उनको वो नहीं नजर आ रहा जिसने इंतशार फैलाया है, हाँ, जिसने बुनियाद रखी है इस इंतशार की, वो नहीं नजर आ रहा। उनको वो नजर आ रहा है कि जो यानी उनके नज़दीक लोग जो उससे कुछ हुआ है, यानी जो पहले उस बदबख्त ने नऊज़ बिल्लाह कुरान पाक को जलाया, वो अब उस चीज़ को कर नज़रअंदाज, फिर जो चर्च जले हैं, फिर मसीह बरादरी के जिस तरह से घरों को जलाया गया, वो अब इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर गुस्ताखी हुई है ना तो उसकी लाजमन उस बदबख्त ने कोई फुटेज भी बनाई हो। साफ ज़ाहिर है वो कुरान मजीद सामने नज़र आया, लोगों के जल्ला हुआ कुरान मजीद नऊज़ बिल्लाह सामने आया, सही। तो उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो यानी अब वो कह रहे हैं कि ये चर्च को जलाना बहुत बड़ा जुर्म है। बिल्कुल जुर्म है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, इस्लामी रियासत में कानून इजाज़त नहीं देता कि किसी आप गैर मुस्लिम की इबादत गाह को नुकसान पहुँचाएँ। और फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान की वहाँ पर क़ियादत पहुँची और पहुँच कर उन्होंने स्पीकर्स के ऊपर ऐलान किया कि ये हमारे लोग नहीं हैं और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी नहीं है। नहीं देखो ना, एक शख्स ने लेकिन गुस्ताखी करी, जी उसके गुस्ताखी करने के बाद उसको ये भी नहीं ख्याल आया कि मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को एक मुसीबत में डालने लगा हूं जो अमन से रह रही। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद पता नहीं अवाम को कौन उकसाता रहा कि सब कुछ अवाम ने तोड़ फोड़ कर दी, जला दिया, गिरा दिया, इमारतें जल गईं, मकानात गिर गए, ऐसा समझ लें कि सड़कें उखड़ गईं और जो कुछ यानी अवाम से हुआ उन्होंने वही किया, चाहे किसी को कोई नमाज पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, किसी को कलमे आती हैं या नहीं आती हैं। फिर मज़हब के नाम पर जो वहाँ पर तबाही जैसा तूफ़ान है ना, जैसे कभी आंधी आती है या बारिश तूफ़ान आता है तो वो चंद घंटों के अंदर या चंद मिनटों के अंदर सब कुछ मिलिया मेट कर देते, वही सीन हुआ है। तो लाजमी बात है लोगों को वो गुस्से में आ गए, और जब लाजमी बात है पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस जाके मेन कल्प्रिट को नहीं पकड़ेगी जिसने ये सारा काम किया, जिसने वो बेहुरमती की, अगर वो उसको थोड़े ही एक घंटे के अंदर अंदर भी पकड़ लेते ना और लाके पब्लिक के सामने कर देते कि भाई हमने इसको अरेस्ट कर लिया है, तो पब्लिक शायद गुस्से में ना आती। सही है। तो ये वो लेकिन हाँ, तो इसमें जो कमजोरी है ना वो रियासती अदारों की कमजोरी है कि उन्होंने फिलफौर कार्रवाई नहीं की। अब वहाँ पर पुलिस ही पुलिस है और लोग भी परेशान है, साफ ज़ाहिर है। जब शैलिंग और शैलिंग के वहाँ पर जो असरात हैं वो सब की आंखों के सामने आए। अब सुबह देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, ये तो कल तो पूरी खबर आएगी, लेकिन आप उस पर नजर रखना कि जिसने बेहुरमती की है कि आया कि वो वाकया सच्चा है, वो तो बात क्लियर हो गई है, वो तो बात क्लियर हो गई है। वो मेरी बात हुई थी अमीर साहब से, आसिफ शाह साहब से बराह रास्त, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है। अच्छा, तस्दीक होगी, ठीक। जी जी हाँ, तो फिर इसमें जो कमजोरी है ना, और जो वो रियासती जो इदारे हैं ना उनकी कमजोरी सही है कि जब उनको एक चीज रिपोर्ट की गई कि भाई ऐसा वाकया हुआ है, उनको फिल फौज उस इलाके में जाके उस इलाके का कंट्रोल संभाल लेते। फिर वो काकुड़ साहब का भी अरेस्ट ना किया, फिर वो काकुड़ साहब का बयान आता है, वो कहता है कि
जिन लोगों ने मसीही बरादरी को नुकसान पहुंचाया उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। यार अब क्या कहा जा सकता इस चीज़ की तो है। यानी इस चीज़ की तो हर बंदा मजम्मत कर रहा है ना, जो कुछ हुआ है। हाँ देखो भाई मजम्मत तो करेंगे हम, लाजमी बात है मजम्मत करेंगे कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। कि देखो जो पीसफुल कम्युनिटी रह रही है उस पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, साफ ज़ाहिर है। ठीक है ना। लेकिन देखो अगर पुलिस अपना काम या सिक्योरिटी इदारे फिल फॉर जाके जब उनको इतला मिली कि भाई ऐसा वाकया हो गया है, अगर वो उस बंदे को फिल फॉर नहीं पकड़ सकते थे ना, अगर वो जाके सिर्फ उस इलाके का इंचार्ज संभाल लेते ना, तो ऐसा क्रिमिनल वायलेंस ना होता। यही तो वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। हाँ दिलचस्पी नहीं ली। अगर दिलचस्पी नहीं ली ना तो यहाँ से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि इस चीज को यहाँ तो प्लांट ना किया गया। सही है। हाँ कि इसकी आड़ में कुछ ऐसे या तो कवानीन पास करवाने होंगे या कुछ किसी किसी समाजी या सियासी ग्रुप के खिलाफ कोई पाबंदी वगैरह का कुछ सोच रहे होंगे। बात समझ रहे हो? ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि इसी वाक्य की आड़ में कोई कानून पास करवाना चाहते होंगे या फिर कुछ मजहबी जमात को या मजहबी लोगों को ठिकाने लगाना इनका मकसद होगा। सुनो असेंबली तो है नहीं, तो वो सदर से एक ऑर्डिनेंस पास करवा लेंगे या काबीना से एक ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, तो सदर उसकी जो है वो दस्तखत कर देगा। तो उसकी आड़ में ये किसी पर्टिकुलर सियासी ग्रुप या सामाजिक ग्रुप के खिलाफ जो है ये उनको बैन करने की इसमें साजिश हो सकती है, जब भी इस पर सिक्योरिटी इदारे फिल फौर हरकत में नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सिर्फ उस इलाके का फौरन जाके कंट्रोल कर लेते ना, तो कम से कम वायलेंस ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखो हम इस चीज को बिल्कुल वायलेंस को हम कंडेम करते हैं कि उन उन मासूम लोगों जो बिल्कुल ही अमन से रह रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात। सिर्फ और सिर्फ जो कल्प्रिट्स थे जिन्होंने ये अमल किया सिर्फ उनको पकड़ना चाहिए। ऐसे ही है। तो ये वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल बनिया। यार हमारे जो इदारे हैं ना वो बहुत ही क्या वर्ड यार किए जाए, इनकॉम्पिटेंसी है यार। बिल्कुल बिल्कुल। ना अहलियत भी हो सकती है। लोग बैठे रहते हैं, काम नहीं करना, बिल्कुल अपने वो सिर्फ मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, छुट्टियां मार रहे हैं। वो जब पानी सर से गुजरता है तो फिर हरकत में आते हैं। ऐसे ही है। तो ये भाई साहब यहाँ पर हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस जड़ावाला के अंदर। अब जड़ावाला का जो राब्ता है वो दूसरे शहरों से मुनक़ता है। चारों तरफ से पुलिस ने उसको घेरा हुआ है ताकि मज़ीद जो है ना ये फैसलाबाद पूरे के पूरे में ना एहतजाज फैल जाए। अब देखो ना वो सोशल मीडिया पे तो वो अब बदनामी जो हो रही है वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं वो इंटरनेशनल मीडिया हुआ या इंटरनेशनल सोशल मीडिया हुआ, वो ये थोड़ी बताएंगे कि भाई वो किसी एक अफराद ने या किसी चंद अफराद ने ऐसी बेहुरमती या गुस्ताखी की तो उसकी वजह से फिर पुलिस की नाअहली की वजह से ऐसा वायलेंस हुआ। वो ऐसा कभी भी नहीं इंटरनेशनल मीडिया या सोशल मीडिया पे बताया जाएगा। वो तो सिर्फ ये दिखाएंगे कि भाई वो देखो माइनॉरिटीज के खिलाफ ये हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और ये हो भी रहा है। उनको तो मौका मिल जाता है भाई। हम इसमें जो सरासर कसूरवार ठहराएंगे ना, हम कसूरवार ठहराएंगे इदारों जो जब उनको रिपोर्ट हुई इस चीज की उन्होंने फिल फौर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की। सही है।
आप कुछ ना करते, बंदे को भी ना पकड़ते, आप सिर्फ उस जाके इलाके का इंचार्ज संभाल लेते, उसको कॉर्डन ऑफ कर देते इलाके को, जो अब किया है पहले कर देते। बिल्कुल सफा बिल्कुल 144 फुल और उसी वक्त लगा देते, ताकि वो लोग जो इसमें मुलव्वस नहीं थे इस गुस्ताखी में, अगर उनके साथ तो जुल्म हुआ है तो गलत हुआ। बिल्कुल ऐसी है। उनके साथ ये जुल्म ना होता। अब तो जो होना था वो हो गया है। हाँ, जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन अब देखते हैं इसका कल कल परसों या कुछ दिनों में जो है इसमें इसका क्या बैकलैश आता है। साफ ज़ाहिर है इसका कुछ ना कुछ निकलना तो है कटे कटा। हाँ, बैकलैश इसका कुछ ना कुछ आएगा। अगर तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड हुआ, बाय डिजाइन हुआ, तो फिर जो मैंने बात कही है शायद वो कुछ हो। और अगर ये उनकी अपनी जाती इंडिविजुअल किसी अफराद की ये इसमें शामिल हैं, तो फिर पुलिस का कसूर है, सही है। रियासती इदारों का कसूर है। बिल्कुल जो बिल्कुल आपकी इत्तला बात मिलने ठीक पर है। क्यों नहीं पहुंचे। चलो, इस पे नजर रखेंगे, आप भी नजर रखना, मैं भी नजर रखता हूँ। इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह इस क्या, सवाल से जैसे ये अपडेट मिलेगी अपने नाज़रीन को बताएंगे। क्योंकि मैंने इसकी ब्रीफली खबर सुनी थी, तो आपने डिटेल में मेरे को बताया और आपने बता दिया कि भाई ये हाँ फिर वो कदम उधर है। मेरा राब्ता भी हुआ ना था आसिफ शाह साहब से, तकरीबन 9 मिनट का मैंने हाँ, इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन उस वक्त भी आवाज़ कटिंग हो रही थी क्योंकि उधर सिग्नल का भी फिर थोड़ा बहुत सिग्नल भी वीक किए गए कि आवाम के आपस में राब्ते ना हों। हाँ, ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है। ये भी उधर सीन सही। क्रिएट हुआ है। चलो कि 1-2 दिन के अंदर ना इस पे प्रॉपर इसकी जो बैक स्टोरी है ना, वो आप हासिल करने की कोशिश करना। वो कौन अफराद थे जिन्होंने बेहुरमती करी, एक शख्स था या ग्रुप था, तो ये हमें बाद में पता चलेगा जो पूरी डिटेल है। अच्छा, अब बाज दफा ये भी होता है कि ये पुलिस भी कवर अप देने की कोशिश करेगी। अगर वाकई ये हैपन हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है बेहुरमती का, तो पुलिस यहाँ से रियासती इदारे इसको कवर अप देने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के इलाकों में की वो शरपसंदी। बिल्कुल बिल्कुल। वो कवर अप देने की कोशिश करेंगे। अगर ये ठीक हो गया। ठीक हो गया।